Hello students, welcome to the new semester. So as scheduled today we'll be studying about transgenic animals. तो नॉन ट्रांसजेनिक या हम जो नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होता है वी हैव एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स ओन जीनोम which is getting expressed in order to in order to have proper functioning of that particular organism. Okay, so now what are transgenic animals? What is different in transgenic animals from normal animals? So a transgenic animal is one whose genome has been altered by the transfer of gene or genes from another species or breed. Okay, तो व्हाट हम क्या करते हैं कि हमने कोई जीन एक दूसरी ब्रीड से विच इज़ फॉरेन टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, वो जीन हमने इंसर्ट कराई उस ऑर्गेनिज्म के जीनोम में, एंड नाउ दैट जीन इज़ being expressed by that particular organism. ठीक है, तो foreign gene is being expressed by an organism. So this process of creating a transgenic animal, this is known as transgenesis. और जो हमने foreign gene जो हमने insert कराई है उस organism में, that gene is known as transgene. Okay. So here हम वापस पहली slide में आते हैं. So here we can see in this picture that the mice that are present in the corner, they are not natural. Okay, so the center mice, this is the non-transgenic or normal or plain mice, and the other two mice that are present at the corner, so these are the transgenic mice. So इसमें हमने क्या किया है, जो ये पिक्चर है इसमें क्या किया गया है कि ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन का जो जीन है, दैट जीन इज इंसर्टेड इनटू द जीनोम ऑफ दिस of these mice. Okay, तो वो जीन क्या हो रहा है, दैट जीन इज being expressed as protein, green fluorescent protein, and that protein is expressed when blue light is thrown upon these animals. Okay, because it is a fluorescent protein, so it is a fluorescent protein, so it expresses when light of a particular wavelength is exposed to this these proteins, and then they emit light of a हायर वेवलेंथ. ओके, सो दैट इज़ द केस. तो इस केस में क्या है, जो हमारा GFP का जीन है, ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन का जो जीन है, दैट इज़ द ट्रांसजीन. और जो हमने ये एनिमल्स क्रिएट किए हैं, दीज आर द ट्रांसजेनिक एनिमल्स. ओके, so the importance of what are the importance of transgenic animals? So in order to create transgenic animals, a very high grade of techniques is needed. मतलब with the advancement of this biotechnology or bioengineering ही possible हो पाया है कि we are able to create these transgenic animals. So what is the importance, मतलब why we are investing so much of our tools, techniques and resources in creating these transgenic organisms? So we'll see its importance. Fine. So the first one, there are many importances. This is just the overview. The major applications or the applications in detail we'll be studying in a separate class when we'll be dealing with that particular portion of the syllabus. So here in this overview, the first application is transgenic animals are routinely used in the laboratory as model in biomedical research, and over 95% of those used are genetically modified rodents, predominantly mice. So हम क्या करते हैं ना कि जो माइस है या और भी जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है, मेजरली माइस इज यूज्ड, बट दीज ट्रांसजेनिक एनिमल्स दे आर यूज्ड टू स्टडी ह्यूमन डिजीजेज या अदर ह्यूमन प्रोटीन्स, ह्यूमन जीन्स की व्हाट आर द फंक्शंस, मतलब हमें व्हाट आर द फंक्शंस और उनका ऑल्टर्ड फंक्शन जीन नॉकआउट वगैरह के लिए. तो क्या होता है कि ह्यूमन जीन is being inserted into the mice. Okay, then that mice has become transgenic, and then we can study the function of that particular gene or the change in physiology. अगर हम किसी diseased gene हम डाल रहे हैं, नॉर्मली हम डिजीज़ मॉडल्स अगर हम कभी क्रिएट करते हैं माइस में, तो हमने ह्यूमन का डिजीज्ड जीन या एबनॉर्मल जीन जो भी उस डिजीज़ में जीन में जो भी एबनॉर्मेलिटी होती है, तो हम उस डिजीज्ड जीन को हम डाल रहे हैं माइस में. Okay, and now we can study the changes in physiology या उसके immune system में या उसके nervous system में क्या changes आ रहे हैं इस disease gene के expression से. Okay, so all this we can study. And also जब हम therapeutic design करते हैं, जब drug design करते हैं, so this is the very basic step of drug designing कि हमने
ड्रग डाल के देखा. सो व्हाट आर द चेंजेस. पहले हम वी हैव इंसर्टेड द डिजीज़ जीन. सो वी सॉ कि हम जो भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम या इम्यून सिस्टम, या हम नॉर्मल फिजियोलॉजी ही देख रहे हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, तो डिजीज़ कंडीशन में देखा. एंड देन वी इंसर्टेड अपना ड्रग कोई पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में. एंड देन वी सॉ व्हाट आर द चेंजेस की व्हाट इज़ द इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग. ओके, सो दिस also helps in in drug discovery, in drug designing. This is the very preliminary step. Okay, and why we use predominantly mice? क्योंकि इसका जो genome है that is very extensively studied, and its genome is very much similar to the genome of humans. Okay, very much comparable and similar to the genome of humans. तो बहुत सारे माइस मॉडल्स हैव बीन यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ मेनी ह्यूमन डिजीजेज लाइक कैंसर, विच इज़ अ वेरी डेडली डिजीज़. अब ह्यूमन मॉडल यूज़ करना इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल क्योंकि ह्यूमन का लाइफ स्पैन इतना बड़ा है, फर्स्ट थिंग. प्लस लोग खुद वॉलंट मतलब आप ह्यूमन को अगेंस्ट द विल ऐसे ही आप यूज़ नहीं कर सकते हो एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म. सो दिस हैज़ मेड दिस बायोमेडिकल रिसर्च वेरी मच फीजिएबल, दिस इन्वेंशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स. ओके, now the second is they are important tools for researching human disease, being used to understand gene function in the context of disease susceptibility, progression, and to determine response to a therapeutic intervention, which I just told. Therapeutic intervention, that is drug designing or intervention or invention of some therapy. Okay, and the last one is transgenic farm animals. Other one, actually, not last one. Transgenic farm animals are also being explored as a means to produce large quantity of complex human proteins for the treatment of human disease. Okay, सो क्या होता है ना कि ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स जो हैं, लाइक फार्म एनिमल्स, काउ, शीप, बफेलो, सो अ प्रोटीन ऑफ सम कॉम्प्लेक्स ह्यूमन प्रोटीन इज़ मेड टू एक्सप्रेस इन is made to express in the milk or eggs or blood of these farm animals. So that a large quantity of protein can be made in a small time and a small budget. Normally अगर हम complex human protein बनाना चाहें थ्रू सेल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से अगर कॉम्प्लेक्स ह्यूमन प्रोटीन बनाया जाता है तो इट इज़ ऑफ वेरी हाई कॉस्ट. लेकिन अगर हम कोई ट्रांसजीन इंसर्ट कर देते हैं इन दीज फार्म एनिमल्स और फिर उसमें अगर मिल्क के साथ वो प्रोटीन जो भी हम चाह रहे हैं, प्रोटीन ऑफ आर इंटरेस्ट अगर बन रहा है, सो वी कैन, और मिल्क तो बहुत आसानी से वी कैन इंजेक्ट फ्रॉम एन एनिमल. ओके, सो वी कैन we can have a good supply of that particular protein, that the protein of our interest, in short budget, short time. Okay, so how these transgenic animals are produced? So there are three important techniques, or three basic techniques for the production of these transgenic animals. First is pronuclear microinjection. Second one is transfection of ES cells, that is embryonic stem cells, and the last one is retroviral vector method. So we'll be discussing all these in a little brief in next slides. So the first method, that is pronuclear microinjection. So how transgene is introduced into an organism using this method is, firstly, here you can see in the top left corner that two fertile male and female have mated and one embryo has formed. Okay, so we'll collect one cell embryo, that is the embryo just after fertilization, but here the male and female pronucleus, they haven't fused yet. Okay, so this is the state just after fertilization, like the male pronucleus have entered the female ovum but they haven't fertilized. So we have collected this one cell embryo, then with the help of one holding pipette we have hold the embryo, और एक glass injecting pipette है जो आप देख रहे हो, ये पॉइंटेड वाला जो राइट से एंटर कर रहा है. सो इस ग्लास इंजेक्टेड पाइपेट में हमने ट्रांसजीन डाला हुआ है अपना. ओके, सो ट्रांसजीन डाला है एंड देन दिस ट्रांसजीन इट इज़ बीइंग इंसर्टेड इनटू द मेल प्रोन्यूक्लियस में. ये ट्रांसजीन इंसर्ट किया जा रहा है. एक्चुअली मेल प्रोन्यूक्लियस में इसलिए करते हैं बिकॉज इट इज़ स्लाइटली बिगर. ओके, तो मेल प्रोन्यूक्लियस में ट्रांसजीन इंसर्ट किया और फिर उसके बाद क्या होगा, दिस बोथ दीज pronucleases, they will fuse and this transgene will get inserted into the genome. ठीक है, but the chances of
इंटीग्रेटिंग दिस ट्रांसजीन इनटू द जीनोम दे आर नॉट वेरी मच हाई. सो जितने भी हम पप्स, जितने भी हमें बाद में पप्स ऑब्टेन होते हैं उसमें से ओनली 10-15% इसका सक्सेस रेट है कि अगर हमने 4 उसमें किया तो उसमें हमें 1 में, 4 में से 1 में या 5 में से 1 में वील गेट द सक्सेसफुल ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म. ओके, तो इसके बाद हमने क्या किया, हमने मेल प्रोन्यूक्लियस में अपना ट्रांसजीन डाल दिया. अब इसके बाद ये हमने जो हमारा जो 1 सेल एम्ब्रियो है इसे हमने एक स्यूडो प्रेग्नेंट फीमेल में डाल दिया. स्यूडो प्रेग्नेंट फीमेल या इसी को हम फॉस्टर मदर भी बोलते हैं. सो व्हाट इज़ अ स्यूडो प्रेग्नेंट फीमेल, हाउ इट इज़ क्रिएटेड, ये इसी पिक्चर में हमें दिख रहा है राइट साइड में कि हमने एक फीमेल को एक स्टेराइल मेल के साथ मेट करवाया. तो इस तरीके से क्या होगा, द फीमेल इट विल नॉट गेट प्रेग्नेंट बट इट्स यूट्रस इट विल बिकम रिसेप्टेबल फॉर दैट फॉर द अटैचमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो जो हम इसमें ट्रांसप्लांट कर रहे हैं. ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने जो हमारे इसके बाद इसने पप्स को बर्थ दिया और जो हमारे द पप्स दैट वी ऑब्टेन्ड दे दोज आर ट्रांसजेनिक फाउंडर एनिमल. ओके, तो इसमें वही कि अगर 4 से 5 पप्स होते हैं तो इसमें वन पप विल गेट इट विल बी ट्रांसजेनिक फाउंडर एनिमल. इसमें हमारी ट्रांसजीन एक्सप्रेस हो रही है. और इन ऑर्डर टू गेट प्योर ट्रांसजेनिक लाइन क्या होती है, जैसे यहाँ हमने जब ये इससे हमने 5 हमारे पप्स आए उसमें से हमारा 1 में ही ट्रांसजीन एक्सप्रेस हुआ है. पर प्योर ट्रांसजेनिक लाइन क्या होती है कि हमारे जितने पप्स आ रहे हैं सब में मतलब हमारी वो ट्रांसजीन जो है परमानेंटली इंसर्ट हो गई है उसमें. फिर उस मदर के जितने भी पप्स होंगे उसमें वो ट्रांसजीन एक्सप्रेस होगी. सो इन ऑर्डर टू गेट प्योर ट्रांसजेनिक लाइन हम क्या करते हैं, जो ये ट्रांसजेनिक फाउंडर एनिमल होते हैं वील get a male transgenic animal and a female transgenic founder animal and a male transgenic founder animal और फिर हम इन दोनों को मेट कराएंगे. ठीक है, तो हम कुछ जनरेशन्स तक ऐसा कराते हैं कि हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को ही मेट कराते रहते हैं. सो इवेंचुअली वील गेट अ प्योर ट्रांसजेनिक लाइन. ओके, the second method that is transfection of embryonic stem cells. So what are embryonic stem cells? The cells of embryo which are totipotent or pluripotent in nature, that is they can give rise to any kind of cell of that embryo, any kind of cell of that organism. Okay, तो क्या होता है कि दीज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ये हम अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में हम एम्ब्रियो से ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स लेते हैं और इन सेल्स का अभी फेट डिसाइड नहीं है कि इन्हें आगे जाके क्या बनना है. तो अभी ये टोटिपोटेंट या प्लूरिपोटेंट इन नेचर है. तो इस टेक्निक में क्या करते हैं कि जो ये हम ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में एम्ब्रियो हमने निकाला और जो ये है हमारा इनर सेल मास है, तो अभी इस स्टेज में जो इनर सेल मास की सेल्स होती हैं दे हैवेंट देयर फेट इज़ नॉट येट डिसाइडेड. फेट मतलब कि आप लोगों ने पढ़ाई होगा डेव बायो में कि इन्हें आगे जाके मसल सेल बनना है, नर्वस टिश्यू सेल बनना है, तो ये अभी हमारा डिसाइडेड नहीं होता. सो दीज आर नोन एज स्टेम सेल्स. तो हमने क्या किया, इनर सेल मास से हमने स्टेम सेल्स निकाला एंड फिर इन स्टेम सेल्स को कल्चर किया और जो हमारा जो ट्रांसजीन है उसे हमने इन स्टेम सेल्स में इंसर्ट किया. ओके, नाउ दीज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ट्रांसजीन इंसर्ट करने के बाद हमने ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स वापस से एक ब्लास्टोसिस्ट में डाल दिया. ठीक है, और इस ब्लास्टोसिस्ट में हमने डाला और फिर हमने इस ब्लास्टोसिस्ट स्टेज को वापस से इम्प्लांट कर दिया इनटू अ फॉस्टर मदर, जैसे हमने अपनी प्रीवियस मेथड में किया था. तो इस ब्लास्टोसिस्ट स्टेज को वापस से इम्प्लांट कर दिया जाता है फॉस्टर मदर में. और फॉस्टर मदर में जब डेवलपमेंट होता है उसके बाद द पप्स दैट वी गेट उसमें हमारा देखो ट्रांसजीन एक्सप्रेस हो रहा है. अगैन द सक्सेस रेट इज़ 15 to 20% और 10 to 15%. कहीं कुछ मतलब अलग अलग बुक्स में थोड़ा अलग अलग इसका डेटा दिया रहता है. तो 10 to 15% इज़ द सक्सेस रेट. तो इसमें क्या होता है ना, जो हमारी ट्रांसजीन एक्सप्रेस होती है वो सिर्फ कुछ ही सेल्स में एक्सप्रेस होती है. मतलब जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो एक काइमेरा है या मोज़ेक है. ठीक है, काइमेरा मतलब आधे सेल्स में हमारे प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है और आधे सेल्स में नहीं हो रहा है. ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जो ये इनर सेल मास लिया था ना, हमने तो सिर्फ इसी में अपने ट्रांसजीन डाले हैं. ओके, और फिर हमने ये एक नॉर्मल ब्लास्टोसिस्ट लिया यहाँ और इसमें हमने डाल दिया. तो हमारा जो ट्रांसजीन है वो किस में एक्सप्रेस होगा, सिर्फ उन्हीं सेल्स में एक्सप्रेस होगा जो हमारी इस इनर सेल मास से बनी है डिविजन होते होते. जो सेल्स बाहर के ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर से बनी है इनमें ट्रांसजीन एक्सप्रेस नहीं होगा. तो द ऑर्गेनिज्म दैट वील गेट उसमें क्या होगा कि दैट विल बी अ मोज़ेक, उसमें सारे सेल्स में हमारा प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं होगा. ओके, जबकि पिछले वाले में क्या हो रहा था, हमने फर्स्ट सेल स्टेज पे ही हमने जो है अपना
ट्रांसजीन डाल दिया था, तो 1 सेल के बाद जितना डिवीजन होगा सब में हमारा ट्रांसजीन विल गेट एक्सप्रेस्ड। ओके, तो इसमें हमारा पूरे ऑर्गेनिज्म में वो प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा होगा, बट इसमें वील गेट अ मोज़ेक कि हमारे आधे सेल्स में वो प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है और आधे में नहीं हो रहा है। अगेन ये हमारा जो है ये हमारा ट्रांसजेनिक फाउंडेड एनिमल हमें मिल गया। इन ऑर्डर टू गेट प्योर ट्रांसजेनिक लाइन हम ट्रांसजेनिक फाउंडेड एनिमल्स को मेट कराते रहेंगे एंड इवेंचुअली विल गेट अ प्योर ट्रांसजेनिक लाइन, जिसमें क्या होगा कि सारे पक्ष जितने भी ऑब्टेन हो रहे हैं दैट विल बी ट्रांसजेनिक। ओके, नाउ द लास्ट मेथड दैट इज़ रेट्रोवायरल वेक्टर मेथड। सो इसमें हमने क्या किया है, हमने एक वेक्टर जो हमारे ट्रांसजीन है वो हम रेट्रोवायरस को हम एज ए वेक्टर यूज़ करते हैं, अपना ट्रांसजीन उसमें इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो दिस टेक्निक इट हैज़ मेड एडवांटेज ऑफ दीज रेट्रोवायरस टू इन्फेक्ट होस्ट सेल्स। ठीक है, तो ये हम इस टेक्निक से हम उन्हीं सेल्स को सिर्फ ट्रांसफॉर्म करते हैं जिन्हें रेट्रोवायरस नेचुरली इन्फेक्ट करता है। ठीक है, रेट्रोवायरस क्या होता है, अ वायरस विच हैज़ RNA एज इट्स जीनोम। ओके, तो हमने क्या किया, ट्रांसजीन को हमने इसमें इंसर्ट किया एंड देन ये 8 सेल एम्ब्रियो हमने लिया है और हमने इस रेट्रोवायरस को इन्फेक्ट कर दिया इसमें। नाउ रेट्रोवायरस उसका तो नेचुरल प्रोसेस है कि वो अपना जो जीनोम है उसमें इंटीग्रेट करेगा। ओके, तो फिर उसके बाद हमने इसे एक फॉस्टर मदर में इम्प्लांट किया और यहाँ भी देखो अगेन द चांसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस DNA आर नॉट 100%। तो हमें 3 में से यहाँ 1 पब हमें ट्रांसजेनिक फाउंडेड एनिमल मिला है। ओके, एंड टू गेट प्योर ट्रांसजेनिक लाइन हम इन्हें मेट कराते जाएंगे। सो दिस इज़ द थर्ड मेथड, रेट्रोवायरल वेक्टर मेथड। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अब इस पिक्चर में भी हम एक बार इस पिक्चर की भी बात कर लेते हैं। यहाँ हमें जो ये है ये हमारा एक ट्रांसजेनिक ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इज़ द फ्रूट फ्लाई, जो आप अपने घर में भी देखते होंगे कि अगर पील्स सब्जी के पील्स या बनाना का पील थोड़ी देर बाहर अगर रह जाता है तो वी कैन सी लाइक many of these flies hovering around it. Okay, so what this transgenic Drosophila melanogaster again, जैसे like इसका भी genome like that of mouse is very much extensively studied and its genome has also very much similarity to that of human. Now इट इज़ मच ईजियर देन इवन माइस टू कल्चर। ठीक है, माइस में तो हमें फिर भी थोड़ा माइस का जो लाइफ स्पैन है वो थोड़ा लॉन्गर है, ये तो माइस से भी ज़्यादा ईजियर है क्योंकि इसे हमें कल्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं चाहिए और इसे हम बहुत लार्ज नंबर में कल्चर कर सकते हैं। तो इसके साथ स्टडी बिकम्स ऑल द वे मोर ईजियर। ठीक है, इसमें भी हमने हमारा जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के भी बहुत सारे ह्यूमन डिजीज़ के मॉडल्स ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में भी हैं। लाइक हम कैंसर मॉडल है फ्रूट फ्लाई का फॉर ह्यूमन डिजीज़, और हमारे पास हंटिंगटन मॉडल है न्यूरोडिजनरेटिव, हंटिंगटन इज़ अ न्यूरोडिजनरेटिव डिजीज़, सो उसका मॉडल है फ्रूट फ्लाई मॉडल है हंटिंगटन डिजीज़ का। और इसके थ्रू बहुत अच्छी स्टडीज़ चल रही हैं और इन पास्ट हुई भी हैं, very remarkable studies, very remarkable findings. So all this advancement in biotechnology have made studies of human diseases so much easier. कि हमें ह्यूमन डिजीज़ वरना स्टडी करने के लिए अगर हम पूरा एक देखना चाहें कि कैसे डिजीज़ का प्रोग्रेशन होता है तो हमें पूरा एक लाइफ स्पैन ह्यूमन का मॉनिटर करना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं अलग अलग स्टेजेस में। लेकिन अब हमारे पास ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं जिनमें हमने वो ट्रांसजीन इंसर्ट की है, जिसे हमने मॉडल बना लिया है ह्यूमन डिजीज़ का। तो इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हम देख सकते हैं कि विद एडवांसमेंट विद डिजीज़ प्रोग्रेशन क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और हमारा क्या क्या ड्रग हम एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस। सो दैट्स इट फॉर टुडे।